tell them, when you have high fever, what do? They will take paracetamol as a symptomatic treatment, but high fever can be due to different causes. So you will try and find out the cause. In the same way, if you have high blood pressure, you must try and find out what is the cause. If you find out the cause and you treat that, you may completely get cured. And if you cannot find out the cause, then it is usually multifactorial. Maybe hereditary predisposition, your lifestyle, high intake of salt, and by modifying this, you can control it without any medication. And despite these changes, if you can't control, you may need to take a medicine which will take care of your blood pressure. Now one must remember that every medicine may have some side effects, but if the benefits are huge, one should not think about the side effect. There is a misbelief that all alternative treatments have only beneficial effect and no side effect. My main suggestion to everyone is never to take a medication about which you do not know the composition, about which the effects and side effects are not known. Just do not be under a wrong concept that any alternative treatment is only beneficial and that it has no side effects. So this is a message that I would want to give on our day of setting up the Center for Prevention and Control of Hypertension. BP 365? Yes. Thank you. Here to see the start of a new initiative from Gleneagles Hospital. We are planning to start a center for prevention and control of high blood pressure, which is widely prevalent all over the world and also in our country. We run a kidney foundation called Narmada Kidney Foundation, and we do regular screening camps. And in our screening camps, we find that the prevalence of high blood pressure is to the tune of 40% in adult population. So we screen all individuals above the age of 18 in various organizations, residential societies, clubs, and we find that 40% of the adults are hypertensive. And what is most disturbing is that 50% of these hypertensive people did not even know that they had high blood pressure. And high blood pressure is one thing which is preventable, and if it is not preventable, it is controllable. A common problem that we find in our clinical practice is that when one is found to have high blood pressure, then he or she is put on blood pressure medicine, which they will take for a few days. Because this is a silent problem, gives you no symptoms, they stop medicines, they never check the blood pressure again, and they continue to remain with high blood pressure for God knows how many years. And then one day, they will present with a sudden heart problem, or they will present with advanced kidney disease, or they may present with brain hemorrhage and stroke. So a simple problem which can be prevented and which can be controlled. Controlling blood pressure is not as difficult as controlling diabetes. All that you need is a proper evaluation and, if required, diet modification, a little lifestyle modification, and tablet. So everyone with a problem. Whatever I wanted to speak in English has already been spoken in Hindi. So this is when you go forth on a dais which has such distinguished people, you really don't have much to say. So I'll keep it short. First of all, I'd like to kind of really congratulate the visionary leadership of Gleneagles Hospital. Dr. Bipin
said that this may not be as complex as possibly a transplant, which you may have heard at this hospital earlier, but also as told by every distinguished speaker before me, it impacts millions and millions of people. It remains undiagnosed, and resistant or untreated hypertension can have really damaging consequences. It can impact your brain, you could have stroke, it could impact your kidneys, you may need dialysis. It could actually cause heart failure, and people don't think about it. We were just talking in a conference room before coming here into this auditorium. Everybody feels, मेरे को तो नहीं होगा, मेरा तो सब ठीक ही है, मेरा बीपी तो इतना रहता ही है. We all have made it a practice, unfortunately, to ignore it. So, when we look at Medtronic, and I would also like to congratulate my colleagues and team members here who have partnered with Gleneagles to come with this partnership. Our mission globally can be defined in 6 words: alleviate pain, restore health, and extend life. In Gleneagles, we have found a partner which shares the same vision. And we want to collaborate to do 2 or 3 things. One, to build awareness about hypertension. Without awareness, no action can be taken. The second thing what we want to do is introduce newer advanced technologies and train physicians in those advanced technologies like renal denervation. And third would be to have a multidisciplinary campaign where each patient is able to access and is given the best possible treatment, which actually avoids all the complications that have been talked about. So, on behalf of Medtronic, it is both a pleasure and a privilege to partner with Gleneagles Hospital. And thank you, Dr. Bharat, Dr. Vipin, Dr. Rahul, and everybody else on the dais who have given us this opportunity. And we really believe that this can create a very meaningful and long-lasting impact towards the health of the nation. Thank you. I really look forward to this. आप सभी का धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए. I think कुछ statistics बताना चाहूँगा. 10 million deaths annually hypertension की वजह से होती है. और जो high blood pressure है, ये हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा silent killer है. अब इसको silent killer क्यों बोलते हैं? Because इसके symptoms नहीं होते जब तक कि complication develop ना हो जाए. और अगर हम hypertension, जिसको हम लोग high blood pressure बोलते हैं, इसको सही समय पे अगर हम ट्रीट करें तो हम लोग डायलिसिस प्रिवेंट कर सकते हैं, बिकॉज किडनी फेलियर प्रिवेंट हो जाएगा. हम लोग हार्ट फेलियर प्रिवेंट कर सकते हैं, हम लोग ब्रेन स्ट्रोक प्रिवेंट कर सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिसेबलिंग हो जाता है. तो ये तीनों चीज़ें जो बहुत ही डिसेबलिंग डिसीजेस हैं, अगर सही समय पर ट्रीटमेंट किया जाए तो पेशेंट्स इन सारी चीज़ों से बच सकता है. अब दूसरा एक बहुत डेंजरस स्टैटिस्टिक्स है कि 3 में से 1/3, मतलब अगर हम इस रूम का कैलकुलेशन करेंगे, हर तीसरा भारतीय हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित है, मतलब उसको हाई ब्लड प्रेशर है. लेकिन सबसे दुखद बात है कि 50% लोगों को मालूम भी नहीं है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है, क्योंकि उन्होंने चेकिंग ही नहीं कराई. अब जो 50% लोग ट्रीट होते हैं, उसमें से सिर्फ लगभग 40-50% लोग ही, जो हमारी टारगेट वैल्यूज हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होना चाहिए, उतने ही लोगों का होता है. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि आज के देश में, आज की जो हमारी सोसाइटी है, उसमें यंग लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, किडनी फेलियर्स हो रही हैं, स्ट्रोक्स आ रहे हैं. अगर आप देखेंगे तो एक बहुत डेंजरस लेवल पे सिचुएशन पहुंच गई है जहाँ पे काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं. और ये बहुत कॉमन हो गया. हमने सेलिब्रिटीज़ में देखा है, हमने स्पोर्ट्स पर्सन में देखा है, हमने बहुत बड़ी लोगों में देखा है जो इन चीज़ों से परेशान होकर हार्ट अटैक से एडमिट हो रहे हैं. तो इसका रीज़न यही है कि साइलेंटली बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हमारे बॉडी में काम करते रहते हैं और उनका पता नहीं चलता है. तो जब जो स्टैटिस्टिक्स हम लोग देखते हैं उसमें हाई ब्लड प्रेशर इज़ वन ऑफ दी, जैसा सर ने भी बताया, बरशा सर ने, कि ये बहुत प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल कंडीशन है, लेकिन इसकी जागरूकता नहीं है. तो ये एडवांस हाइपरटेंशन सेंटर का एक जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी दिनों से हमारे दिमाग में चल रहा था, और इसको सामने लाने का रीज़न ये है, जो डिफ़िकल्ट टू ट्रीट ब्लड प्रेशर हैं, जिनको 3-3, 4-4 दवाइयाँ चल रही हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, जो स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, उनको दोबारा स्ट्रोक नहीं होना चाहिए. अगर किसी को एक बार स्ट्रोक हो गया, उसमें से वो बच गया है, या हार्ट फेलियर हुआ है, वापस से नहीं होना चाहिए, या किडनी क्रिएटिनिन बढ़ना चालू हो गया, जो किडनी डिसीज का एक इंडिकेटर है, वो वापस से सीवियर किडनी फेलियर में नहीं जाना चाहिए जहाँ डायलिसिस लगे. तो ऐसे व्यक्तियों का सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए, उन्हें सही ट्रीटमेंट होना चाहिए. इसीलिए ये एडवांस कार्डियक सेंटर का एक इस कॉन्सेप्ट को
लगाया गया है, जबकि ब्लड प्रेशर सभी जगह ट्रीट होता है, लेकिन इसको सही दिशा देके एक अल्गोरिदम के माध्यम से सही ट्रीटमेंट हम लोग अपने पेशेंट्स और मरीजों को दे सकें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने बताया 50% लोगों को मालूम भी नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है। तो हमारे एक्शंस में ऐसे भी होने वाला है कि जो यहाँ पे एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर विपिन सर ने काफ़ी उसमें सहयोग दिया, और उन्होंने कहा भी कि जितने भी जो मरीज के साथ लोग आते हैं, जो डॉक्टर्स के लिए वेट कर रहे हैं, जो लॉबी में वेट कर रहे हैं, जो पेशेंट्स एडमिटेड हैं, उनका हम फ्री चेकअप करके उनका स्क्रीन करेंगे एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि जो लोग 50% जिनको पता भी नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है, ऐसे लोग भी डायग्नोसिस कर सकें और उनको मार्गदर्शन दे सकें। तो ये इस सेंटर के और भी सारे एक्शन रहेंगे जो बाकी लोग बोलेंगे। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा। थैंक यू। ब्लड प्रेशर कहाँ से शुरू होता है? बेसिकली हमने यही देखा है कि ब्लड प्रेशर जो इंसान की उम्र बढ़ते जाती है, और ये ब्लड प्रेशर कहीं एक सर्टेन उम्र के बाद जब आपकी शादी होती है और शादी के दूसरे दिन से ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ देखा गया है, ठीक है? तो ये क्यों होता है? बेसिकली ये उम्र की वजह से एक मेजर इम्पैक्ट होता है, लेकिन जो ट्रेंड है ब्लड प्रेशर का ये अभी चेंज हो चुका है। पहले ज़माने में आफ्टर 30 इयर्स ऑफ एज, 30 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ता था, लेकिन आज हम यही देख रहे हैं कि जो ब्लड प्रेशर है ये कम उम्र के लोग, इवन कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग एज ग्रुप में भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा देखा गया है। तो ये एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जो हम सोच रहे हैं ये क्लिनिक के बारे में, ये क्लिनिक का ज़रूरत क्यों है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं बराबर, तो कैसा मेथड होना चाहिए? ये मेथड बहुत करेक्ट वे से अगर हम ब्लड प्रेशर चेक करें तो सही ब्लड प्रेशर क्या है या सूडियो हाइपरटेंशन क्या है ये आपको पता लग जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर आप सही तरीके से चेक करेंगे, उसके कुछ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के हिसाब से एक स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप्स, जो मेरे हिसाब से इंडिया में फ़िलहाल तो भी सही तरीके से ब्लड प्रेशर चेक करना कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है जो करेक्ट वे से ब्लड प्रेशर चेक करे एज पर दी ACC गाइडलाइंस। तो ये क्लिनिक के द्वारा हम यही कोशिश करना चाहेंगे कि सही ब्लड प्रेशर चेक कैसे होता है। जैसे आपको 15 मिनट रूम में अकेले बैठना है, आधा घंटे कुछ खाना पीना नहीं है, ब्लड प्रेशर के वक्त आपका जो पैर है, जो मैंने जानबूझ के ऐसे फोल्ड करके रखा है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। सीधा बैठ के आपको ब्लड प्रेशर चेक करना है। ब्लड प्रेशर चेक करते हुए बोलना नहीं है, ओके? और ये सारे जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जिसमें ब्लड प्रेशर चेक होता है, आपको 3 रीडिंग लेनी है ब्लड प्रेशर की। कोई मुझे बताएगा कि आपका कभी 3 रीडिंग हुआ है? मैं बोलता हूँ नहीं, कोई डॉक्टर ने अभी आज तक 3 रीडिंग लेके पहला रीडिंग डिस्कार्ड करना है, सेकंड और थर्ड रीडिंग का एवरेज लेना है। तो सही तरीके से ब्लड प्रेशर चेक करना और सही तरीके से उसको आइडेंटिफाई करना और उसके पश्चात उसका सही तरीके से निवारण करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी चीज़ है, जिसको हम ये क्लिनिक के द्वारा सारे जो इंडिया के डॉक्टर्स हैं और जो नर्सेज हैं और जो सेंटर्स हैं जो ब्लड प्रेशर चेक करें, इंक्लूडिंग जनरल प्रैक्टिशनर, स्पेशलिस्ट, तो सही तरीके से ब्लड प्रेशर कैसे चेक किया जाता है और उसका जो घर पे ब्लड प्रेशर कैसे चेक करना है, अगर आप घर पे हो और आपको ब्लड प्रेशर लेना है, आपकी मशीन का कैलिब्रेशन कैसे होता है। तो ये क्लिनिक के माध्यम से हम ये जन जागृति है ये फैलाना चाहते हैं, और इसके वजह से न केवल ब्लड प्रेशर चेक होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसको ट्रैक करना। एक बार ब्लड प्रेशर आपको पता लग गया कि ब्लड प्रेशर है, 2 बार आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और आप ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हैं, अगर गोली खा रहे हैं तो वो उसको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग क्या होता है, उनको वो एक मूवी आया था, देखो कौन सा था वो, आमिर खान सब भूल जाता है, गजनी। तो ये गजनी का इफेक्ट हो रहा है कि लोग ब्लड प्रेशर की दवाई तो ले लेते हैं, लेकिन अगले 10 साल तक उन्होंने कोई डॉक्टर को नहीं देखा। उनको लगता है कि हम ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, लेकिन ये ब्लड प्रेशर 160/90 है, ये चलता है और वो चलता है कि वो चलता है, वो चलते ही जाता है, और एक दिन वो इमरजेंसी में यहाँ पे हार्ट अटैक या स्ट्रोक करके या किडनी फेलियर करके आ जाता है। तो ब्लड प्रेशर को सही उसका नाप करना, उसका सही आगे का ट्रीटमेंट करना, उसका प्रॉपर ट्रैकिंग और फॉलोअप, और अगर अनकंट्रोल्ड रहता है तो अप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस के लिए आपको जाना चाहिए जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो।
तो अल्टीमेटली ये जो बीपी का जो हमने क्लिनिक का नाम दिया है बीपी 365, बीपी ना केवल एक दिन का चीज़ है. वंस यू आर हाइपरटेंसिव यू शुड ऑलवेज चेक योर ब्लड प्रेशर. एंड ये बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको लंबी उम्र चाहिए. अगर हमको 100 साल की उम्र तक जाना है तो हमको ब्लड प्रेशर ये 365 डेज चेक करना है. अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, अगर दवाई लेने के बावजूद भी ज़्यादा रहता है, तो आपको प्रॉपर जो स्पेशलिस्ट है, जो हमारा सेंटर है, उसको कंसल्ट करना है. और जब आप सेंटर में आएंगे, जब हमने पता लगा लिया ये रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है, मतलब 3 दवाई के बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो अप्रोप्रिएट उसके लिए इंटरवेंशन या दवाइयाँ दे के उसको कंट्रोल किया जा सकता है. और ये चीज़ से लाखों जिंदगियां